آزاد کشمیر حکومت، عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل جامع معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل، مظفر آباد اور پونچھ میں نئے تعلیمی بورڈز کے قیام سے تعلیمی اصلاحات کی جائیں گی۔ منگلا ڈیم توسیعی منصوبے کے متاثرہ خاندانوں کو زمین کی فراہمی یقینی بنانے کا وعدہ، صحت اور بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ منظور، گرفتار مظاہرین کی رہائی اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کا شفاف اور منصفانہ حل معاہدے میں شامل۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ ہماری بات چیت کامیاب ہوئی اور آزاد کشمیر میں امن واپس بحال ہوا۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام کی جیت ہے، پاکستان کی جیت ہے اور جمہوریت کی جیت ہے۔ احتجاج جو تھا وہ وائلنٹ ہو گیا اور اس میں کافی سارا خون بہا، جو بہت تکلیف دہ ہے اور اس کے اوپر بہت افسوس ہے۔ ان خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت ہے۔ جن تحریکوں میں تشدد شامل ہو جاتا ہے وہ تحریکیں منزل کھو دیتی ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا۔ انتظامی ڈھانچے میں کمی کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے سے پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں کی جیت ہوئی۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پرتشدد مظاہروں میں خون بہنے پر افسوس ہے۔ کمیٹی ہر 15 روز بعد اجلاس کرے گی۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ بھارت کی کشمیر میں خون ریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان کامیاب مذاکرات، آزاد کشمیر میں زندگی معمول پر، موبائل سروس بحال، بازار کھل گئے، مظفر آباد، باغ آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس بحال کر دی گئی، کاروباری مراکز کھل گئے اور ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہو گیا، موبائل نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سروسز مرحلہ وار بحال ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم، حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ وزیراعظم نے مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کی انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کو سراہا اور اسے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا سب کے مفاد میں ہے۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ فتنہ ہندوستان کے شرپسند مسلسل ناکامیوں پر بوکھلاہٹ کا شکار، خوزدار کے علاقے زہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کا بروقت آپریشن، 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز عوام کے تحفظ کے لیے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ وزیراعظم کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، شہباز شریف نے اپنے حالیہ بیرون ملک دوروں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی نواز شریف کو آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کامیاب مذاکرات پر بھی تفصیلی بریفنگ۔ وزیراعظم کل اپنے ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم کی دعوت پر ملائیشیا کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے وفد سے گفتگو، کہا کہ عوام کی بلوث خدمت میرا مشن، گڈ گورننس عوام کے مسائل کا حل ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس، مریم نواز کو 8 بڑے محکموں کی تفصیلی بریفنگ۔ پنجاب میں 65 لاکھ بچوں کی سروائیکل کینسر ویکسینیشن کا ریکارڈ قائم۔ اجلاس میں دور دراز علاقوں کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت 9 تعمیر شدہ گلیوں کی توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔ لندن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی، غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج، برطانوی حکومت کی فلسطین ایکشن پر پابندی، ریلی کے دوران پولیس نے دھوا بول دیا۔ لندن پولیس نے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین کا غزہ میں قتل عام روکنے اور فلسطین ایکشن پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ فلسطین حمایتی ریلی کا انعقاد ڈیفینڈ آور جیوریز نامی تنظیم کی جانب سے کیا گیا۔
गजा में अमन के लिए आलमी सतह पर कोशिशों में पेशरफ। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का बाज़ाब्ता जवाब जंगबंदी और इसराइली अफवाज के मुकम्मल अनखला के बदले तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए रजामंद। सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शमूलियत पर भी राजी। अमन मंसूबा कबूल करने पर अमरीकी सदर का हमास से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जिन ममालिक ने मदद की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जंग के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। अब इसराइल फौरी तौर पर बमबारी रोक दे ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। हमास के अमन मुआहदा कबूल करने पर अक़वाम मुत्तहिदा, कतर और मिस्र का भी खैर मकदम। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, ये अमन की जानिब बढ़ने के लिए एक अहम कदम है। तमाम फरीक़ैन गजा में जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के फौरी जंगबंदी के मुतालबे की हिमायत की। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। गजा में गुज़िश्ता रोज 72 फ़लस्तीनी शहीद। अल-मवासी में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए। सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो गए। सुबह से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 7 हो गई। सेहोनी फौज का नया हरबा। गजा शहर में बस्तियों को तबाह करने के लिए धमाका खेज मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फ़लस्तीन में जंगबंदी के करीब हैं। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमास के बयान ने जंगबंदी और अमन कायम करने के लिए मौका फराहम किया। हमें इसे दोबारा ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम करते हैं। इसराइल फौरी तौर पर गजा में हमले बंद करे। हमास का ये इक़दाम फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने का मकसद है। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई इंसानी इमदाद में भी मददगार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री और सऊदी हम मनसबों से राबता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर आती और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता करके गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अहम उमूर और इलाक़ाई पेशरफ़्त बिलख़ुसूस गजा की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक का इसराइल से आलमी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। इटली में मुल्क गिर हड़ताल में 20 लाख से ज़ायद अफराद शामिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का ने इसराइली कार्रवाई को गैर कानूनी अगवा करार दिया। कराची, पेशावर और कोयटा में भी मार्च। हुकूमत का बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने से मुतालिक अहम ऐलान। एक्स से राबते। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने अपने एक बयान में बताया कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। एक्स से भी राबते में हैं। मजीद शवाहिद सामने आने पर नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। बानी के एक्स अकाउंट के ताने बाने जहां से मिलते हैं या जो उसे चला रहा है, इस वक्त सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इस हवाले से कानूनी तरीक़ेकार पर अमल दरामद किया जा रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज को डी-सीट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब और शिबली फराज को डी-सीट करने से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब को डी-सीट करने के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया था। 1 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म करते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को मजाज फोरम के सामने सरेंडर करने के लिए भी हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब की सजाएं होने के बाद डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 9 मई तोड़फोड़ और फायरिंग केस वापस लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह 9 मई केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए गए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत जमा करा दिया। 9 मई को पथराव और फायरिंग के वाकयात में कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुल्जिमान में जाहिर शाहतोरो, MNA मुजाहिद खान और दीगर शामिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की सैलाब से होने वाले नुकसानात के बायस IMF से बजट सरप्लस हदफ पर नजरसानी की दरख्वास्त। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक दूसरे इक़्तिसादी जायज़े के लिए पाकिस्तान आए हुए IMF जायज़ा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं, जिसकी तकमील के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की IMF जायज़ा मिशन से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें खदशा ज़ाहिर किया गया है कि सैलाब के बायस 1464 अरब का सूबाई बजट सरप्लस हदफ हासिल न होने का इम्कान है।
सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान। नए जुर्माने और डी मैरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000, दीगर गाड़ियों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 5,000 का जुर्माना होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाना जरूरी है। शिकारपुर में अलमनाक सानहा तेज रफ्तारी मौत का सबब बन गई। बाईपास रोड पर मजदा बिजली के पोल से टकरा गई। 5 खवातीन समेत 7 अफराद जमाक, 7 शदीद जख्मी। हादसे के बाद 11,000 वोल्टेज की तारें सड़क पर गिर गईं। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। DGISPR का कैनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने इस्तकबाल किया। इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। बारिश के पेश नज़र जो अपर कैचमेंट में है, हमारे पास तकरीबन अगले 48 घंटे में ये जो 20,000 हेड बराला पे है, ये अल्टीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पानी पहुंच सकता है। तो ये पानी के बहाव ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल वो दरपेश नहीं है। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से मजीद पानी आने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के। DGPDMA का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था सैलाब से होने वाले नुकसान का अजाला किया जा रहा है। मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। दरियाओं की सूरत हाल नॉर्मल है। बहरे अरब में डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके तूफान में तब्दील। तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से छठा अलर्ट जारी। कराची में आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। आवाम की पहुंच से मजीद दूर सोने की फिर ऊंची उड़ान। एक हफ्ते में फी तोला कीमत में 12,000 से जायद का इजाफा। आलमी मार्केट में इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत भी 2100 रुपए के इजाफे से 4,07,778 रुपए की सतह पर पहुंच गई। फी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,801 रुपए बढ़कर 3,51,404 रुपए की सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में फी आउंस सोने की कीमत $21 के इजाफे से $3,886 की सतह पर पहुंच गई। मोदी हुकूमत के हिंदुत्व नजरिए की आड़ में उत्तर प्रदेश में मुनज़्ज़म तबाही। 4 माह के दौरान दूसरी मस्जिद शहीद। फौजी दस्ते और भारी पुलिस अफरी के साथ मजहबी मुकामात पर कब्जे और तजावुज़ात के नाम पर हमले। मुसलमानों की मजहबी शनाख्त और आज़ादियों पर बढ़ते हमले भारत में सेक्युलरिज्म के खात्मे और समाजी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा करार। तफरी पाबंदी खत्म। तालिबान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आइंदा हफ्ते भारत के दौरे पर जाएंगे। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कमेटी ने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी पर आयद सफरी पाबंदी को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया। इस फैसले के बाद से अमीर खान मुत्तकी के भारत के दौरे की राह हमवार हो गई। ये दौरा 9 से 16 अक्टूबर के दरमियान मुतवक्किल है। भारत एक और आलमी इवेंट की मेजबानी में नाकाम। नई दिल्ली में पैरा ओलंपिक्स के दौरान आवारा कुत्तों के हमले में जापान और कीनिया के कोचेस जख्मी। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी भारत नाक़िस इंतजामात पर तनकीद की जद में रहा था। पेशावर के तारीखी आसार में 250 साल पुराना कुआं भी शामिल, जो अपने ठंडे और शफाफ पानी के बायस कभी सर्द चाह या ठंडी खोई के नाम से मशहूर था। कुआं खुश्क हो गया, इसके आसार आज भी मौजूद। कदीम खदोखाल आज भी असल हालत में महफूज हैं। मारूफ गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। मसूद राना ने 550 से जायद फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड करवाए। उन्हें पाकिस्तान का मोहम्मद रफ़ी भी कहा जाता है। मसूद राना हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है।